Hello, welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 12. Today we are going to study third chapter of your book Vistas. The name of the chapter is The Enemy by Pearl S. Buck. In this part we will discuss about the author, theme and summary of the lesson. So let us start. Pearl S. Buck, born on 26 June 1892 and died on June 6, 1973, was an American writer and novelist. She is also known by her Chinese name Tsai Zhen-zhu. In 1932, she won Pulitzer Prize for her novel The Good Earth. She was the first American woman to win the Nobel Prize in Literature in the year 1938 for her rich and truly epic description of peasants' life in China and for her biographical masterpieces. She was a prominent advocate of the rights of women and the minority groups. Now, the theme of the chapter. The story deals with the conflict between a man's duty towards the state and to his own conscience. In fact, the story raises questions about ethics of a human being at the time of war. Dr. Sadao has been brought up in the traditional and patriotic environment. He dislikes the Americans, but at the same time, he is a doctor and cannot let the American prisoner of war bleed to death. The story condemns racial discrimination and hails the superiority of humanity above any other consideration. And now, summary. The story is set in the times of World War II. Dr. Sadao is a Japanese doctor who is an expert surgeon and scientist. He finds an American prisoner of war at his threshold who is bleeding and on the verge of death. Initially, Dr. Sadao and his wife Hana think of throwing the unconscious man back into the sea but cannot do so. Finally, they bring him home. Dr. Sadao operates upon him with the help of his wife. They both have to face the protests of the servants as they refuse to clean the man and live in protest. The man starts recovering slowly. One day, Dr. Sadao has to go to see the general. Dr. Sadao, while treating the general, tells him about the American in his house. The general promises to send his personal assassin to quietly kill the American. Dr. Sadao does not tell his wife about this plan and keeps on waiting for the assassins for 3 nights, but they do not turn up. By this time, the American has recovered. Now, Dr. Sadao decides to send him to an unguarded island in the sea. He gives him a boat, a torch, lots of food and water, and a flashlight. He instructs him to stay on that island and wait for a Korean boat. He also tells him to signal him 2 flashes if he runs out of food before he takes a boat. Dr. Sadao is again called by the general. At this time, he has to be operated upon. Dr. Sadao tells the general that the American has escaped. The general keeps quiet about all this. Finally, Dr. Sadao does not see any flash of light and realizes that the prisoner has escaped safely. Well, so let us recap the story in Hindi. जैसा कि
इस स्टोरी में हम लोगों ने देखा ये कहानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड की एक घटना को डिस्क्राइब करती है। डॉक्टर सदाओ जापान के वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स एंड साइंटिस्ट होते हैं, जिन्होंने वुंड्स को क्विक रिकवर करने के लिए रिसर्च भी किया हुआ है। एक दिन अपनी पत्नी के साथ अपने घर के पीछे में ही टहल रहे होते हैं, तो उनका वो देखते हैं एक अमेरिकन सोल्जर जो बिल्कुल भी अनकॉन्शियस होता है और प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग, वो कंटिन्यूस ब्लीडिंग उसके बॉडी से हो रही थी, उन्हें मिलता है। चूँकि वार टाइम है, जापान अमेरिका के साथ युद्ध लड़ रहा होता है, ऐसे में एक अमेरिकन सोल्जर उनके हाथ लगता है। तो फर्स्ट टाइम तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही सोचते हैं कि इसे वापस समुद्र में डाल दिया जाए क्योंकि एक दुश्मन है। लेकिन फिर डॉक्टर सदाओ का जो कंसाइंस है, अंतरात्मा, उनको लगता है कि एज ए डॉक्टर दिस इज़ अगेंस्ट ऑफ एथिक्स ऑफ हिज प्रोफेशन। एक डॉक्टर का काम लोगों की जान बचाना होता है, ना कि किसी की जान लेना। लेकिन ही इज़ इन डायलेमा, वो डायलेमा में होते हैं, क्योंकि अगर वो किसी दुश्मन की जान बचाते हैं तो अपने देश के खिलाफ जाता है, और अगर वो उसे मारते हैं तो एक अगेंस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी होता है, अगेंस्ट ऑफ द एथिक्स ऑफ हिज प्रोफेशन होता है। ऐसे में वो एक डिसीजन लेते हैं और सोचते हैं कि एज ए डॉक्टर उन्हें कोशिश करनी चाहिए उसकी जान बचाने की, और जब वो सही हो जाता है तो एज ए गुड सिटीजन ही कैन हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। तो ऐसे में सी ग्रास वहाँ होता है, उसी से उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करते हैं। फिर हना की मदद से उसे घर लाते हैं, लेकिन घर में अमेरिकन सोल्जर को देखते ही सारे डोमेस्टिक हेल्प्स नाराज़ हो जाते हैं, और वो इतना नाराज़ हो जाते हैं कि वो काम करना भी उन्होंने बंद कर दिया। और उनका कहना था कि जब तक ये अमेरिकन सोल्जर इस घर में रहेगा वो काम नहीं कर सकता। लेकिन हना डॉक्टर सदाओ की हेल्प करती हैं, उस अमेरिकन सोल्जर का वो जख्म साफ़ करती हैं, उस पर एनेस्थेसिया देती हैं, और डॉक्टर सदाओ उसका ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करके उसकी गोली निकाल लेते हैं, और वो जो बुलेट है वो बिल्कुल उनके हार्ट को टच करने वाला था। धीरे धीरे वो रिकवर कर रहा होता है अमेरिकन सोल्जर। इसी बीच जो चीफ जनरल होते हैं जापान के, उनका कॉल आता है। उनकी तबीयत ख़राब चल रही होती है, और उन्हें डॉक्टर सदाओ, चूँकि वो पर्सनल डॉक्टर थे उस जनरल के, इसीलिए उन्हें विदेश में ट्रूप के साथ नहीं भेजा गया था। तो जाके देखते हैं और अमेरिकन सोल्जर के बारे में बता भी देते हैं जनरल को कि वो हमारे घर पे हमने रखा हुआ है और वो अब रिकवर कर रहा है। तो चीफ जनरल उनको प्रॉमिस करता है कि कोई बात नहीं, आप अपने घर का दरवाज़ा खुला रखना, रात में हमारे प्राइवेट असैसिन्स जाएंगे, वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने में, और दे कैन आल्सो डिस्पोज द बॉडी, और डिस्पोज ऑफ भी कर देंगे बॉडी को। डॉक्टर सदाओ 3 दिन तक वेट करते हैं अपने घर पे, लेकिन कोई नहीं आता। फिर उनको लगता है कि जिस आदमी को, वो तो मर ही चुका था, लेकिन उन्होंने उसे ज़िंदा किया और अब वो स्वस्थ हो चला है, और ऐसे में फिर से उसे मौत के मुंह में धकेलना, दिस इज़ नॉट लाइक ए ह्यूमन। तो उन्हें लगता है कि अगर किसी भी तरह इसे एस्केप करा दिया जाए, यहाँ से भगा दिया जाए, तो उसकी जान भी बच जाएगी। और जनरल
के का जो इंस्ट्रक्शन था उन्होंने ऑलरेडी 3 रात तक वेट भी किया था, तो शायद जनरल भूल गया था अपनी तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो उन्होंने प्लान किया, अपना खुद का बोट अरेंज किया, उसमें उसके ब्लैंकेट्स दिए, फूड आइटम्स दिए, वाटर बॉटल्स दिए और साथ में एक टॉर्च भी दे के, और अमेरिकन सोल्जर को उन्होंने कहा कि आप सामने वाला जो आइलैंड है, लोनली आइलैंड, वहाँ चले जाओ और वहाँ से आपको कोरियन बोट मिल जाएगी और आप सुरक्षित अपने देश अमेरिका पहुँच सकते हो। इनिशियली तो अमेरिकन सोल्जर काफ़ी रिलक्टेंट था, वो जाना नहीं चाहता था उनको छोड़ के, क्योंकि वो वहाँ बहुत ही सुरक्षित महसूस करता था और काफ़ी उसे प्यार भी मिल रहा था उस फैमिली से। लेकिन उसके वजह से डॉक्टर सदाओ की जान को भी खतरा हो सकता था, इसलिए वो मान गया। और डॉक्टर सदाओ ने उसे इंस्ट्रक्शन भी दिया था कि वहाँ पे आग नहीं जलाना है आइलैंड पे, नहीं तो वो खतरे में पड़ सकता है, उसके धुआं से देखकर फिर से पकड़ा सकता है। और दूसरा इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया था कि अगर उसे बोट नहीं मिला और कुछ फूड आइटम्स का शॉर्टेज अगर हो जाता है तो वो शाम में टॉर्च लाइट 2 बार जला सकता है। फिर शाम में जाके वो वॉच भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई टॉर्च लाइट नहीं जलता है। इसका मतलब कि वो सुरक्षित उस आइलैंड को छोड़ चुका होता है। तभी चीफ जनरल से उनका कॉल आता है, फिर से वो जाते हैं चीफ जनरल को देखने, और इस बार चीफ जनरल काफ़ी सीरियस दिखाई देता है, उसे तुरंत ऑपरेशन करना होता है। ऑपरेशन करते हैं और अब जनरल भी स्वस्थ हो चुका होता है, और जब वो कॉन्शसनेस हो आ जाता है, उसे रिगेन करता है, अपना होश में आता है जनरल, तो डॉक्टर सदाओ उसे बताते हैं अमेरिकन सोल्जर के बारे में कि वो तो चला गया यहाँ से। फिर भी जो जनरल होते हैं वो नाराज़ नहीं होते डॉक्टर सदाओ पे, और उन कहते हैं कि यू आर ए गुड पर्सन, यू हैव सेव्ड 2 लाइव्स, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, आपने 2 ज़िंदगियाँ बचाई हैं। और फिर वो कहते हैं कि अस्वस्थ होने की वजह से मैं अपना प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं कर पाया, भूल गया था, वैसे कोई बात नहीं, और उनको माफ़ कर देते हैं। इसी नोट के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।